بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا میراث کا چوتھا سبق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کتاب اللہ میں میراث کے جو حصے مقرر ہیں، کتاب اللہ میں جو میراث کے حصے مقرر ہیں وہ 6 ہیں، یعنی کتاب اللہ میں جو حصے آئے ہیں کہ شوہر کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، تو وہ 6 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں یہاں آپ دیکھ لیں، اس کو سمجھے بھی۔ نصف، ربع، ثمن، ان کو قسم اول کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بات آپ سمجھیے، یہ آگے بہت کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ نصف کا مطلب ہے آدھا، نصف کا مطلب کیا ہے؟ آدھا۔ اور ربع کا مطلب ہے چوتھائی، ربع کا مطلب ہے چوتھائی۔ اور ثمن کا مطلب ہے آٹھواں حصہ، ٹھیک ہے۔ اور قسم ثانی ثلثان، ثلث اور سدس۔ ثلثان کا مطلب ہے 2/3، ثلثان کا مطلب کیا ہے؟ 2/3۔ اور ثلث کا مطلب ہے 1/3، ٹھیک ہے۔ اور سدس کا مطلب کیا ہے؟ 6واں حصہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کتاب اللہ میں جو حصے مقرر ہیں میراث کے وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ یہ جو نصف، ربع، ثمن، ان کو قسم اول کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ان کو قسم ثانی کہا جاتا ہے، ان کو قسم ثانی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نصف کا ذکر قرآن میں تقریباً 3 مرتبہ آیا ہے، نصف کا ذکر قرآن میں تقریباً 3 مرتبہ آیا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، یہ کتاب کے حاشیہ میں لکھے ہوئے سارے، ٹھیک ہے۔ تو نصف قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ربع ہے، تو ربع کا تذکرہ 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، سورہ نساء میں آیت نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثمن کا تذکرہ 1 مرتبہ آیا ہے، ثمن کا تذکرہ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ٹھیک ہے۔ اور ثلثان کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن میں تقریباً 2 مرتبہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یہاں نون محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثلث کا تذکرہ بھی قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اس طریقے سے سدس کا تذکرہ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ٹھیک ہے۔ یہ سراجی کی کتاب ہے، یہ والی کتاب اگر کسی کے پاس ہو تو حاشیہ میں یہ مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قسم اول، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قسم ثانی۔ تو یہ سراجی میں آپ کو یہاں پر ایک بات ملے گی کہ ان دونوں میں تضعیف اور تصنیف کا تعلق ہے۔ کس کا تعلق ہے؟ تضعیف اور تصنیف۔ تضعیف اور تصنیف کا کیا مطلب ہے؟ تضعیف اور تصنیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دائیں طرف سے دیکھیں ادھر، اگر ہم اس کو دائیں طرف سے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا دگنا ہے، یہ اس کا دگنا ہے، یعنی نصف ربع کا دگنا ہے۔ اور اگر ہم ربع کو دیکھیں تو ربع ثمن کا
दुगना है। ठीक है, यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये बात अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती। देखिए, ये अगर हम दो हिस्से करें तो इसको क्या कहा जाता है? निसफ। निसफ ये है और निसफ ये है, तो इसको कहेंगे निसफ। ठीक है, और अगर इसको हम 4 हिस्से करें तो इसको क्या कहेंगे? यानी इस एक हिस्से को क्या कहेंगे? रुबा। इस एक हिस्से को क्या कहेंगे? रुबा। तो ये जो एक हिस्सा है ना, देखिए निसफ इसका दुगना है, निसफ इसका दुगना है, निसफ इसका रुबा का दुगना है, रुबा का दुगना है। और अगर हम इसको कितने हिस्से करते हैं? 8 हिस्से मिसाल के तौर पर करते हैं, 1 2 3 4, और ये जो है ना 8 हिस्से अगर हम इसको करते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पर 8वां हिस्सा है, तो ये रुबा जो है ये 8वें का दुगना है। ये बात समझ में आ गई अभी? ठीक है, तो अगर हम इसको दाएं तरफ से पढ़ेंगे, इसमें तज़ईफ और तस्नीफ का ताल्लुक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको दाएं तरफ से पढ़ेंगे तो निसफ रुबा का दुगना है और रुबा सुमुन का दुगना है। ठीक है, और अगर हम इसको बाएं तरफ से पढ़ें तो सुमुन रुबा का निसफ है और रुबा निसफ का निसफ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये सुलुसान है, इसको हम अगर दाएं तरफ से पढ़ेंगे तो सुलुसान सुलुस का दुगना है। सुलुसान सुलुस का, सुलुस किसको कहते हैं? 1/3 को, और सुलुसान किसको कहते हैं? 2/3 को। ठीक है, तो ये सुलुस सुलुसान सुलुस का दुगना है और सुलुस जो है ये सुलुस का दुगना है। सुलुस सुलुस का, इसी तरह आप समझिए, ये मिसाल मैंने आपको समझाया। ठीक है, और अगर यहाँ से हम इस तरफ से पढ़े, इस तरफ से अगर हम पढ़े तो ये जो सुलुस है ये सुलुस का आधा है। ठीक है, और सुलुस ये सुलुसान का निसफ है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो ये कुरान में जो हिस्से मज़कूर हैं ये कितने हैं? कुरान में जो हिस्से मज़कूर है वो 6 हैं, निसफ, रुबा, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस। और इनको क्या कहा जाता है? ये इनको, ये जो निसफ रुबा सुमुन है इसको किस्म अव्वल कहा जाता है, और ये जो सुलुसान सुलुस सुदुस है इनको किस्म सानी कहा जाता है। ये आगे जब हम मसला बनाएंगे ना तो ये काम आएगा। ठीक है, ये आपको फिर बाद में वहाँ समझाऊंगा कि किस्म अव्वल और किस्म सानी का मतलब क्या था। किस्म अव्वल और किस्म सानी का हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें पता चले कि ये किस्म अव्वल है और ये किस्म सानी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो किताबुल्लाह में जो हिस्से मुकर्रर हैं वो कितने हैं? 6 हैं, और जिनको हिस्से मिलते हैं जो ज़वील फुरूज़ है वो कितने हैं? 12 है। उनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्द और 8 औरतें हैं। ठीक है, तो अभी हम उनके अहवाल पढ़ेंगे। अहवाल का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर हम अब की हालतें पढ़ेंगे, वालिद की, अब और जद की हालतें आज पढ़ेंगे, अहवाल पढ़ेंगे। अहवाल का मतलब ये है कि अगर एक शख्स मर गया और उसका बाप रह गया है, उसका वालिद रह गया है, एक शख्स मर गया और उसका वालिद जिंदा है, तो वालिद को मीरास में कितना मिलेगा? तो उसकी तकरीबन 3 हालतें हैं, यानी एक हालत में इतना मिलेगा और दूसरी हालत में इतना मिलेगा और तीसरी हालत में इतना मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आज हम पढ़ेंगे बाप के अहवाल। यहाँ से हमारा जो मीरास शुरू हो गया, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक शख्स मर गया और उसका वालिद रह गया है तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा? ठीक है, तो ये तफसील अगर आपको याद हो तो आपको पता चल जाएगा कि वालिद को इतना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अब की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं। अब की कितनी हालतें हैं? अब हम यहाँ लिख देते हैं अब, और इसकी हालतें लिख देते हैं। ठीक है, एक हालत में इसको सिर्फ सुदुस मिलता है। एक हालत में उसको क्या मिलता है? सुदुस। सुदुस का मतलब है छठा हिस्सा। ये जो छठा हिस्सा है ये सुदुस इसको मिलता है। ये उसकी पहली हालत है, यानी एक हालत में उसको क्या मिलता है? सिर्फ सुदुस मिलता है, सिर्फ सुदुस मिलता है। ठीक है, और दूसरी हालत में उसको सुदुस भी मिलता है और आसबा भी होता है। ठीक है, मेरी तरफ देखिए। और तीसरी हालत में उसको वो फ़कत आसबा होता है, वो फ़कत आसबा होता है। ये बात समझ में आ गई? बाप की 3 हालतें हैं। एक हालत में उसको कितना मिलता है? सिर्फ सुदुस मिलता है। ये कौन सी हालत में मिलेगा? ये उस हालत में मिलेगा कि अगर एक आदमी मर गया है, ठीक है, और उसका वालिद जिंदा है, लेकिन जो शख्स मरा है मैयत है, हम यहाँ लिख देते हैं मैयत, उसका बेटा
पोता या पड़पोता कोई भी शख्स मौजूद हो इनमें से, यानी मैयत का बेटा मौजूद हो, चाहे उसकी बेटी हो या ना हो, लेकिन अगर मैयत का बेटा हो तो इस सूरत में बाप को कितना मिलेगा? सुदुस मिलेगा। ठीक है, मसलन अब्दुल्ला मर गया और उसका वालिद अब्दुर्रहमान जिंदा है, ठीक है, और अब्दुल्ला का एक बेटा अब्दुर्रहीम मौजूद है, तो अब्दुल्ला के वालिद को अब्दुर्रहमान को कितना मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा, सिर्फ सुदुस मिलेगा। ठीक है, इसकी जो है ना हम मीरास की इस्तिलाह में उसके लिए यहाँ पर एक मैयत बनाते हैं। मैयत यानी मिसाल के एक नक्शा बनाते हैं कि एक शख्स मर गया, ठीक है, और उसका एक जो है ना बेटा है और एक क्या है? वालिद है, इब्न है और अब है। ठीक है, अब या वालिद, आप बेटा इब्न लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि मसला 6 से बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि मसला किस तरह बनाना होता है। सिर्फ आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप समझे, तो मसला हम 6 से बनाएंगे और एक किसको देंगे? वालिद को सुदुस। और असबा, हमने असबा की क्या तारीफ पढ़ी थी कि ज़वील फुरूज से जो कुछ बच जाए तो वो कौन लेता है? असबा। तो अगर 6 हिस्से हो गए, 6 हिस्से हो गए, उनमें से एक हिस्सा हमने वालिद को दिया, तो बाकी कितने हिस्से बचे? 5 हिस्से। तो वो 5 हिस्से किसको मिलेंगे? इब्न को मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अगर मैयत का बेटा, पोता, पड़पोता, इसी तरीके से बेटे की जगह आप पोता लगा दे, पड़पोता लगा दे, कोई भी लगा दे, तो यही सूरत बनेगी। ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। सिर्फ क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। और दूसरी सूरत यह है कि मैयत को सुदुस भी मिलेगा, वालिद को सुदुस भी मिलेगा और असब भी होगा। सुदुस भी मिलेगा और असब भी होगा। वो कौन सी सूरत में होगा? कि अगर एक शख्स मर गया, ठीक है, और उसका बेटा नहीं है, उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसकी बेटी, पोती या पड़पोती मौजूद है, तो इस सूरत में क्या मिलेगा? इस सूरत में इसको सुदुस भी मिलेगा और असब भी होगा। इसको सुदुस भी मिलेगा और क्या होगा? असब भी होगा। इसकी मिसाल आप समझे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम इसी तरह मसला बनाते हैं। यहाँ पे मैयत है, ठीक है, और 6 से हमने मसला बना दिया। 6 से क्यों बनता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मसला 6 से क्यों बनता है, 12 से क्यों बनता है, 8 से क्यों बनता है। ठीक है, तो मैयत की सिर्फ एक बेटी है, क्या है? बिन्त है और अब है, यानी वालिद है और बेटी है। अगर किसी को अरबी समझ में नहीं आती तो उनके लिए। ठीक है, तो बेटी को आधा मिलता है। बेटी को कितना मिलता है? आधा मिलता है। तो हमने आधा किसको दे दिया? अरे 3 हिस्से दे दिए ना, तो बाकी कितने बचे? 3 बचे। और वालिद को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। तो सुदुस कितना है? 1। ठीक है, और बाकी कितने बचे? अभी 2 बचे। तो ये 2 भी बाप को मिलेगा। 2 भी किसको मिलेगा? तो इसको भी कितने हिस्से मिले? 3 हिस्से मिले। ठीक है, तो ये 2 इसको क्यों मिले? क्योंकि ये असबा है, और हमने पढ़ा है कि ज़वील फुरूज से जो कुछ बच जाए तो वो कौन लेता है? असबा लेता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये दूसरी हालत हो गई। ठीक है, और तीसरी हालत ये है कि वालिद असबा होगा। सिर्फ वालिद क्या होगा? असबा होगा। और उसकी सूरत ये है कि एक आदमी मर गया, उसने अभी तक न शादी नहीं की है, शादी तो की है लेकिन उसके बच्चे या कुछ भी नहीं है उसके। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा? बाप को बाब असबा होगा, यानी जो कुछ बचा है वो सारा के सारा कौन लेगा? बाप लेगा। मिसाल के तौर पर मैयत हम यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद जितने पैसे होंगे वो सारे के सारे कौन लेगा? अब लेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं। अब की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं। ठीक है, कि अगर मैयत का बेटा, पोता, पड़पोता कोई भी मौजूद हो तो आपको कितना मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सुदुस मिलेगा। और अगर मैयत का बेटा नहीं है, बेटी है, पोती है, यानी इनमें से कोई भी मौजूद है। ठीक है, अगर बेटी मौजूद है तो फिर तो पोती को नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये कि बेटी नहीं है तो पोती होगी, पोती नहीं है तो पड़पोती होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी इला आखिरी है, ठीक है, तो इस सूरत में मैयत को क्या मिलेगा? सुदुस भी मिलेगा, छठा हिस्सा भी मिलेगा और वो असब भी होगा। ठीक है, असबा का मतलब क्या है कि जो कुछ बच जाए वो भी।
اور تیسری حالت یہ ہے کہ میت کو سب کچھ ملے گا، اگر بیٹے کے باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بیٹی وغیرہ نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے، تو پھر باپ کیا ہوگا؟ عصبہ محض ہوگا، یعنی اس کو ٹھیک ہے سارا مال اس کو ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تین حالتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یہی تین حالتیں جد کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور حالت بھی ہے، یعنی ہم یہاں پر اب کی جگہ فرض کر لیتے ہیں کیا؟ جد، یعنی اگر تو جد اگر موجود ہے، ٹھیک ہے، جد کی بھی یہی تین حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک چوتھی حالت بھی ہے، لیکن تین حالتیں یہی ہیں۔ اگر میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا موجود ہو تو جد کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا موجود نہ ہو، بیٹی ہو، ٹھیک ہے، تو میت جد کو کیا ملے گا؟ سدس بھی ہوگا اور عصبہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میت کی کوئی بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ملے گا؟ وہ عصبہ محض ہوگا۔ ایک چوتھی حالت یہ ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کا والد بھی زندہ ہے اور دادا بھی زندہ ہے، تو یہ چوتھی حالت ہے۔ اس چوتھی حالت میں دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ محجوب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ محجوب کا مطلب یہ کہ پردہ آ گیا، والد موجود ہے تو یعنی اس میت کا والد موجود ہے تو اس کے دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ حالتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم حالتیں پڑھیں گے آج۔ دو افراد کی حالتیں ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، والد کی حالت اور دادا کی حالت۔ تو یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر ابھی آپ سے کوئی یہ مسئلہ پوچھے کہ والد کو کتنا ملے گا، تو آپ اس کو یہ تفصیل بتائیں گے کہ والد کو اگر میت کا کوئی بھی بیٹا ہو تو والد کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا، اور اگر بیٹا نہ ہو، بیٹی ہو، تو اس صورت میں کیا ملے گا؟ سدس بھی ملے گا، اور جو کچھ بچ جائے وہ بھی والد کو ملے گا۔ اور اگر میت کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو پھر والد کیا ہوگا؟ عصبہ محض ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو آج کا ہمارا یہ درس ہے، یہ قسم اول اور قسم ثانی کو یہ بھی یاد کر لے، ٹھیک ہے۔ قسم ثانی نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، یہ 6 حصے قرآن میں ہیں، اور سارے مسائل ہمارے اسی سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ بنانے کا طریقہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، تو آج آپ یہ سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں